जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम हक से जानेंगे। पूछेंगे हम सूचना मांगेंगे, हर मुश्किल आसान बनाएंगे। पूछेंगे हम सूचना मांगेंगे, हर मुश्किल आसान बनाएंगे। अब तो हमें ये अधिकार मिला है, आरटीआई जब से लागू हुआ है। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम हक से जानेंगे। गांव की हो पंचायत या मंत्रालय का दफ्तर, किसी गांव का अस्पताल हो या कोई बिजली घर, क्या हुआ क्या ना हुआ मालूम करेंगे। कैसे होता काम काज हम हक से जानेंगे। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आशाओं की जोत मिलकर जलाएंगे, अपनी भागीदारी हम निभाएंगे। ये सरकार हमारी, ये देश हमारा है। ये सरकार हमारी, ये देश हमारा है। मिलकर बनाएंगे ये जान से प्यारा है। यही आरटीआई का नारा है। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे। સુપ્રભાત મિત્રો, હું ડૉક્ટર પિયુષ કોલડિયા આજે આ રવિવારની એક સુંદર સવારે હું આજે ખૂબ જ સરસ સેશન લઈને આવ્યો છું. સેશનનું નામ છે આરટીઆઈ, રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ. તમે છેલ્લા ઘણા સમયથી સાંભળતા જ હશો, આરટીઆઈથી આ બહાર આવ્યું, આરટીઆઈથી આ બહાર આવ્યું, આરટીઆઈથી આ કૌભાંડ બહાર આવ્યું. તો આ આરટીઆઈ પ્રોગ્રામ છે શું, એ આપણને વિસ્તૃત માહિતી આપવા માટે આજે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં મોજૂદ છે મિસ્ટર અજય જાંગીડ. અજય જાંગીડનો પરિચય આપતા પહેલાં હું આરટીઆઈ વિશે થોડી વાત કરવા માંગીશ. મિત્રો, આપણે સાંભળ્યું હશે રાજ કપૂરનું એક સુંદર ગીત હતું જૂના જમાનાનું, કે સજનવે જૂઠ મત બોલો ખુદા કે પાસ જાના હૈ. તો આ ગીતમાં લેખક એવું કહેવા માંગતા હતા કે તમે ખોટું નહીં કરો, આપણે હિસાબ આપવાનો છે. તો આપણા ગવર્મેન્ટમાં પણ હિસાબ આપવાનો એક કાનૂન છે. આ હિસાબ આપવાનો કાનૂન એટલે કે આરટીઆઈ. તો આરટીઆઈની આપણને વિસ્તૃત માહિતી આપવા માટે આજે આપણી સાથે મોજૂદ છે મિસ્ટર અજય જાંગીડ છે. અજય જાંગીડ વિશે હું ટૂંકમાં પરિચય આપું તો છેલ્લા ઘણા સમયથી આરટીઆઈની અવેરનેસ માટે કામ કરી રહ્યા છે અને લગભગ સંખ્યાબંધ એમના સેમિનારો થઈ ચૂક્યા છે સુરતમાં અને ઓલ ઓવર ગુજરાતમાં. અને સુરત લેવલે અને ગુજરાત લેવલે એમણે ઘણા બધા કૌભાંડો પણ બહાર પાડ્યા છે. તો ચાલો હું આપ સૌ વતી સ્વાગત કરું છું મિસ્ટર અજયભાઈ જાંગીડ. અજયભાઈ, આજની આ સુંદર સવારે હું તમારું સ્વાગત કરું છું આજના સ્ટુડિયોમાં. અને હવે તમે દર્શક મિત્રોને સમજાવો કે આરટીઆઈ શું છે અને કઈ રીતે આ કાનૂનનો ઉપયોગ કરી શકાય. વેલકમ અજયભાઈ, પ્લીઝ. થેન્ક યુ વેરી મચ. નમસ્કાર મિત્રો. વાત આવે છે સવારની, રવિવારની સવાર. તમે ઊંઘમાંથી જાગ્યા, ઊંઘમાંથી તો તમે જાગી ગયા. હવે હું તમને જગાવવા આવ્યો છું કે તમે એક નાગરિક તરીકે તમારા શું અધિકાર છે. જેમ ડૉક્ટર પિયુષ કોલડિયા સાહેબે કીધું કે રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ, માહિતીનો અધિકાર, સૂચના કા અધિકાર. આ અધિકાર શું છે?
આ અધિકારનો તમે ઉપયોગ કેમ કરી શકો અને શું છે આ બધું સમજાવવા કરતાં પહેલાં મારે તમને લોકતંત્ર શીખવવું પડે કે લોકતંત્ર શું છે, લોકશાહી શું છે. આપણે માત્ર વાર્તા કરીએ છીએ કે આ લોકશાહી છે, આપણે લોકતાંત્રિક દેશમાં રહીએ છીએ, ભારત વિશ્વનો સૌથી મોટો લોકતાંત્રિક દેશ છે, આ બધી વાતા કરીએ છીએ કે આ છે. પણ અસલમાં લોકતંત્ર શું છે? અસલમાં લોકતંત્ર જે આપણે 5 માર્ક્સનો એક જવાબ, એક પ્રશ્ન આવતો હતું અને એનો જવાબ આપીને જે આપણે ભણી ગણીને મોટા થયા એ નથી. બાય ધ પીપલ, ટુ ધ પીપલ, ફોર ધ પીપલ, લોકો માટે, લોકોથી, લોકો દ્વારા સંચાલિત તંત્ર એટલે લોકતંત્ર. આ માત્ર 5 માર્ક્સનું પ્રશ્ન અને એનો ઉત્તર પૂરતો છે. પણ માહિતી અધિકાર કાયદો એને સાચા અર્થમાં લોકતંત્ર શું છે એ બતાવે છે. લોકતંત્ર શું છે, લોકતંત્રની પરિભાષા શું છે? લોકતંત્રની એક જ પરિભાષા છે, લોકો એ રાજા. 26 જાન્યુઆરી જે આપણે બહુ ધૂમધામથી ઉજવીએ છીએ, નેશનલ હોલિડે મનાવીએ છીએ, આ બધું કરીએ છીએ, પણ અસલમાં 26 જાન્યુઆરી શું છે? 26 જાન્યુઆરીનું નામ આપણે ગુજરાતમાં લોકો જે ગુજરાતી ભાષામાં અને હિન્દી ભાષામાં કહે છે પ્રજાસત્તાક દિવસ, એટલે પ્રજાના હાથમાં સત્તા. તો બસ આ જ છે લોકતંત્ર. સત્તા મારી પાસે છે, આ બધા લોકો અમારી પાસે પબ્લિક સર્વન્ટ તરીકે, હું પબ્લિક છું અને પબ્લિક સર્વન્ટ તરીકે આપણી પાસે કામ કરે છે. હવે થઈ વાત કે આ લોકો આપણી પાસે કામ કરે છે તો આપણો અધિકાર શું છે? આપણા બહુ બધા અધિકારો છે, મારા દેશમાં આપણે બહુ બધા અધિકારો મળ્યા છે. થાય શું છે? આ અધિકારોને આપણને જ્ઞાન થતું નથી, આ અધિકારો આપણને ખબર નથી, તો આ અધિકારીઓ, આ નેતાઓ, અન્ય લોકો આપણા પર હાવી થઈ જાય છે અને એ લોકો રાજા બની બેસે છે અને આપણે એની પાછળ હાથ જોડીને એની આગળ પાછળ ફરતા હોઈએ છીએ. પણ લોકતંત્રની પરિભાષા અલગ છે. 1995-1996માં એક લડાઈ ચાલુ થયેલી હતી એક નાનકડા ગામમાં, રાજસ્થાનના ભીમ જિલ્લાના એક નાનકડા ગામમાં, અને એ ગામ લોકોનું એક જ કહેવું હતું, એક જ વિચાર હતું, અમને અમારો હિસાબ જોઈએ, અમને અમારા કાગળિયા જોઈએ, અમને દસ્તાવેજ જોવા છે, અમારે તમારો હિસાબ કિતાબ જોવું છે, અમને પંચાયતમાં શું થયું, કેટલી રોજગારી આપી, કોને શું આપ્યું, એ બધું જોવું છે. અને આ લડાઈ ધીમે ધીમે શાંતિથી અને અહિંસાની સાથે આગળ વધતા એક બહુ મોટો સ્વરૂપ લઈ લીધું. અને આ મોટો સ્વરૂપ લીધા પછી 2005માં આ લોકો, જેમાં બહુ મોટી ટીમ કામ કરી રહી છે, આ ટીમ, આ લોકો, આ નાના લોકો એક કાયદો બહાર પૂરી પાડવામાં સક્ષમ બન્યા. અને એ કાયદાનું નામ આપવામાં આવ્યું રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ. ગુજરાતીમાં કહીએ તો માહિતી અધિકાર, हिंदी कहे तो सूचना का अधिकार, मराठी में माहिती का अधिकार. अधिकार क्या है? तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी क्या. राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कुछ लोगों को गलतफहमी है कि आप कोई भी सरकारी तंत्र से आरटीआई करके हिसाब किताब, कागज, जेरोक्स, ये सब मांग सकते हो. हाँ, ये तो है, लेकिन मूल परिभाषा कुछ और है. मूल परिभाषा में राइट टू इन्फॉर्मेशन में ये भी लिखा है कि आप कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन का इंस्पेक्शन मांग सकते हैं. इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण. आप वो इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं. आप बोल सकते हैं कि मुझे ये डॉक्यूमेंट देखने हैं, आप बोल सकते हैं कि मुझे ये काम देखना है. आपको इसी भाषा में कहूँ तो आप एक पर्टिकुलर ग्राम पंचायत के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सिर्फ वहाँ पे से इन्फॉर्मेशन नहीं लेना. यदि आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा जानकारी चाहिए, लार्ज जानकारी है, बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो आप इंस्पेक्शन मांग सकते हैं. इंस्पेक्शन यानी क्या? इंस्पेक्शन का सीधी सादी परिभाषा आज है. इंस्पेक्शन, आप आरटीआई एप्लीकेशन कीजिए और एप्लीकेशन करने के बाद में आपको वो अधिकारी बुलाएंगे, आपको वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बुलाएगा और पब्लिक इन्फॉर्मेशन बुला के आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि आप ये इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, आप ये इन्फॉर्मेशन जान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन क्या है. एग्जाम्पल देता हूँ. अजय जहांगीर ने एक पर्टिकुलर ग्राम पंचायत में एक आरटीआई एप्लीकेशन की. उसने पूछा 2010 से लेके 2017 तक ये ग्राम पंचायत में कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, कितनी ग्रांट आई, कहाँ खर्च हुई, कितने टेंडर खुले, किस किस को टेंडर लगे, टेंडर के लिए क्या क्या प्रोसेस करने में आई थी, और टेंडर का इंस्पेक्शन किसने किया था, इसकी मेजरमेंट बुक क्या है, इसको कितना पेमेंट दिया गया था और कौन कौन सी कंडीशन थी. बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है. आप उनको आरटीआई एप्लीकेशन कीजिए और सिर्फ 20 रुपये, गुजरात की मैं बात करता हूँ, अन्य में अलग अलग फीस है, मैं फीस के बारे में आगे चर्चा करूँगा, लेकिन 20 रुपये के अंदर और हर आधा घंटे का 20 रुपया आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा. यानी आप 1 घंटे के 40 रुपये, वो हिसाब से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आप वो इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो. आप वो इन्फॉर्मेशन
को पढ़ सकते हो, आप उसका निरीक्षण कर सकते हो, आप काम का निरीक्षण कर सकते हो, आप सब कुछ जान सकते हो। और उसके बाद में यदि आपको पसंद आता है कि मेरे को फलाना डॉक्यूमेंट मुझे अच्छा लगा, मुझे ये टेंडर की कॉपी में कुछ घपला लग रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, तो आप वो अधिकारी से, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, जो गुजराती भाषा में माहिती अधिकारी है, वो माहिती अधिकारी से, जाहिर माहिती अधिकारी से आप वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की जेरोक्स कॉपी मांग सकते हो। और ये है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अपने आप में बहुत वाइल्ड है। लोगों का सोचना है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई एप्लीकेशन करो और घर बैठे आपके इन्फॉर्मेशन आएगी। बात सही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा विस्तृत रूप में कहना जाऊँ तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का मीनिंग हो गया, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन का निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप काम देख सकते हैं, क्या काम हुआ, मुझे काम का निरीक्षण करना है, आप काम देख सकते हैं। यदि चालू काम है, आपको आरटीआई एप्लीकेशन करके सरकार कैसे काम कर रही है, पंचायत कैसे काम कर रही है, आज सरकारी कंपनी कैसे काम चल रही है, मेरे पैसे का कहाँ उपयोग हो रहा है और कैसे उपयोग हो रहा है, वो मुझे जानना है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर में आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की एक एप्लीकेशन कीजिए और सामने वाले जाहिर माहिती अधिकारी से डिमांड कीजिए कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे ये इंस्पेक्शन करना है, मुझे ये देखना है। तो मित्रों, राइट टू इन्फॉर्मेशन अपने आप में बहुत इजी और बहुत सरल कानून हमारे देश में बना हुआ है। हमारे देश में आने के पहले 85 देश में ये कानून था। स्वीडन जैसा एक छोटा सा और एक पूर्व का देश है, हम बोलते हैं ज़्यादातर हम पश्चिम को फॉलो करते हैं, लेकिन पूर्व का एक छोटा सा देश, इसमें आज के 250 साल पहले ये कानून था। यानी ये कानून हमको लेट मिला है, बहुत लेट मिला है, लेकिन हमको ये कानून मिल गया है। बस ये कानून की पहुंच, ये कानून की रीच, ये कानून की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम आप लोगों को सिखाएं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है क्या और आप उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप उपयोग कैसे करना, आपको आरटीआई करने के लिए चाहिए क्या, आप किस तरीके से आरटीआई कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा विधि नहीं है, बहुत ज़्यादा गणित नहीं है, बहुत ज़्यादा विज्ञान नहीं है और बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। बहुत इजी, बहुत सिंपल। आप कोई भी एक सादा पन्ना लीजिए और वो पन्ने पे किसी भी कलर के पेन से आपको जो पसंद हो, आपको लिखना आता हो, आप पढ़े लिखे हो तो आप लिखिए। और सिर्फ आपको इतना लिखना है, जाहिर माहिती अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और वो चीज़ को आप पर्टिकुलरली जिस इंफॉर्मेशन जिससे मांगना है वो वहाँ पे भेज दीजिए। अब बात आती है कि मुझे तो जानकारी ही नहीं है, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कानून के अंदर धारा 6(3) में प्रावधान दिया गया है कि यदि नागरिक ने गलती से ये इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन किसी दूसरे को दे दी है, किसी गलत जगह पे चली गई है, तो जिस जगह पे गई है उस अधिकारी की एक जवाबदारी बनती है कि 5 दिन के अंदर अंदर ये इंफॉर्मेशन की जगह को आप, ये एप्लीकेशन को आप सही जगह पे पहुंचाइए। लिखना 3 भाषाएं मुख्य लिखने की होती है। एक हमारे यहाँ की प्रांतीय भाषा, जैसे गुजरात की है तो गुजराती, महाराष्ट्र में है तो मराठी, लेकिन ध्यान रखिए आपकी प्रांतीय भाषा नहीं, आप जिस सरकारी डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप एप्लीकेशन कर रहे हो उसकी प्रांतीय भाषा। यानी आप गुजराती में आरटीआई एप्लीकेशन महाराष्ट्र में नहीं भेज सकते हैं। गुजरात में कोई आरटीआई करनी है तो आप गुजराती में कर सकते हैं, आप हिंदी में कर सकते हैं और आप इंग्लिश में कर सकते हैं। 3 भाषा के अंदर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की एप्लीकेशन कर सकते हैं यदि आपको पढ़ना लिखना आता हो। तो नहीं आता हो तो मैं दूसरी बात अलग से करूँगा, लेकिन आता हो तो ये कर सकते हैं। अब बात है कि उसको कैसे लिखा जाए। उसके लिए कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको जैसे आता हो, आपको ऐसे, आपको निबंध के जैसे लिखना हो, आपको सादी भाषा में लिखना हो, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना हो, आपको किस तरीके से लिखना है, उसके लिए कोई भी फिक्स सरकार ने जरूर नमूने बनाए हैं, कानून में जरूर नमूने दिए गए हैं, लेकिन कानून में यह भी लिखा गया है कि जरूरी नहीं है कि उसी फॉर्मेट के अंदर आरटीआई एप्लीकेशन किया जाना चाहिए। आपको जिस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन, आपके दिमाग में जो प्रश्न उठ रहे हैं, उस प्रश्न को इन्फॉर्मेशन मांगने के स्वरूप में तब्दील करके आप कर सकते हैं। अब बात आई कि किस तरीके से। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक सोसाइटी में, गोकुलधाम सोसाइटी में यदि मैं रहता हूँ, मुझे वो गोकुलधाम सोसाइटी में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कितना खर्च किया उसके बारे में जानना है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ लोकेशन देना है, और वो लोकेशन मुझे इस तरीके से देना है कि जिससे मैं जिससे इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ उसको मालूम पड़े कि मैं कौन से गोकुलधाम सोसाइटी की बात कर रहा हूँ।
तो मुझे लिखना पड़ेगा कि गोकुलधाम सोसाइटी, वार्ड नंबर या एरिया, आजू बाजू का लैंडमार्क, ये सिटी के अंदर या ये गांव के अंदर आने वाली सोसाइटी, ये मुझे बताना पड़ेगा। और दूसरा सबसे अहम चीज़ है, मुझे टाइम पीरियड बताना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, हम मांग लेंगे, लेकिन नहीं। हो सकता है गोकुलधाम सोसाइटी 50 साल पुरानी हो सकता है 100 साल पुरानी हो सकता है 30 साल पुरानी हो, और आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी में पिछले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में रोड कितना बना, तो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन आप इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी में कितनी बार रोड बना और उस पर कितना खर्च हुआ, तो सामने वाला अधिकारी कंफ्यूज होगा। उसको भी नहीं मालूम पड़ेगा कि ये 10 साल की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, 20 की मांग रहे हैं, गोकुलधाम की कब की, जन्म से लेके आज तक की मांग रहे हैं। तो हमको 2 चीज़ बहुत क्लियर करनी पड़ेगी कि इन्फॉर्मेशन किसके रिलेटेड है, वो बताना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, इन्फॉर्मेशन कौन से टाइम पीरियड की चाहिए। आपको आपके पर्टिकुलर लैंड की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये लैंड में कितनी नोट पड़ी, किस तरीके से नोट पड़ी, क्या डॉक्यूमेंटेशन हुआ, तो आपको लिखना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में पर्टिकुलर सर्वे नंबर, पर्टिकुलर गांव, पर्टिकुलर तालुका और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आई हुई ये ज़मीन में पिछले 5 साल में या पिछले 7 साल में कितनी नोट पड़ी है, कच्ची या पक्की, वो नोट की जेरोक्स, नोट के लिए जो प्रोसीजर हुई उसकी जेरोक्स, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या एप्लीकेशन हुई उसकी जेरोक्स, ईच एंड एवरीथिंग आप मांग सकते हो। बट उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन क्या है, कौन से लोकेशन की है, और दूसरी आप कितने समय की मांगना चाहते हो। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि हम इन्फॉर्मेशन मांगने में गलती कर देते हैं, हम ये लिखना भूल जाते हैं कि मुझे कितने समय की इन्फॉर्मेशन चाहिए। और होता क्या है, सामने वाला अधिकारी कंफ्यूज हो जाता है, इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, और हम फिर उनको कोसते हैं कि मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी और मुझे वो टाइम पे नहीं मिली। तो हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन करते समय एक ब्लैंक पॉइंट से इन्फॉर्मेशन नहीं मांगनी है, हमको सचेत हमेशा में इन्फॉर्मेशन मांगनी है कि मुझे पर्टिकुलर क्या चाहिए। यदि कोई अनजान आदमी मेरी एप्लीकेशन को पढ़े तो क्या उसको मालूम पड़ेगा कि ये कौन सी गोकुलधाम सोसाइटी की मांग रहा है, या कौन से गांव के सर्वे नंबर की मांग रहा है, वो कौन से तालुका में था और कौन से जिला में था, तो ही जाके पॉसिबल हो पाएगा। नहीं तो बात ये है कि पिछले 50 साल, 60 साल, 100, 150 साल के सिनेमा में रामनगर बहुत ही गाँव का नाम है, बहुत ही पिक्चरों में रामनगर आ गया है, लेकिन वो रामनगर कौन सी मूवी वाला, कौन से जिले वाला, वो किसी को मालूम नहीं है। तो उसका जवाब मिलना मुश्किल नहीं, मैं तो बोलता हूँ नामुमकिन है, क्योंकि उसके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अब बात हो गई कि एप्लीकेशन आपने लिख दी, आपने इन्फॉर्मेशन के लिए एक एप्लीकेशन कर दी, आपने लिख के प्रिपेयर कर दी, अब उसको देना कैसे है और कहाँ देना है। मैं इन्फॉर्मेशन मांगने के बारे में एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि प्रश्न स्वरूप में आप ना पूछें। आपको इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए उसको प्रश्न स्वरूप में कन्वर्ट ना करें। यदि आपको पूछना है किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा कहाँ किया, आपने ऐसा कब किया, वो सब सवाल ना कीजिए। आप सीधा साधा सवाल कीजिए कि ये पर्टिकुलर टेंडर कब खुला था, उसकी जगह आप लिखिए कि टेंडर जब खुला उसका ऑफिस नोट की कॉपी दीजिए। वो ऑफिस नोट के अंदर कारण से लेकर ईच एंड एवरीथिंग होगा। उसके बाद में आप टेंडर की कॉपी मांगिए, टेंडर प्रोसीडिंग की कॉपी मांगिए, टेंडर में किन किन लोगों ने भाग लिया उनके सबकी कॉपी मांगिए। इस तरीके से टेंडर किसको लगा और टेंडर लगने की प्रोसीजर क्या क्या हुई थी और किस कारण ये टेंडर पर्टिकुलर आदमी को लगा, उसकी ऑफिस नोट मांगिए। किस कारण लगा वो आपको जानना है, लेकिन किस कारण लगा वो प्रश्न मत पूछिए, आप सीधा साधा पूछिए मुझे उस ऑफिस नोट की कॉपी दीजिए जिसमें यह डिसीजन हुआ कि ये टेंडर फलाना एंड फलाना एबीसी कंपनी को अलॉट किया गया है। वो सबसे इजी तरीका है कि यानी ये एक प्रश्न, जो प्रश्न स्वरूप में आप इंफॉर्मेशन ना मांगिए वो, और आप सामने वाले को समझाने में सफल होइए कि आपको चाहिए क्या। आपको रिकॉर्ड पे जो है वो मिलेगा, जो रिकॉर्ड पे नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। बहुत से मित्रों का, बहुत से दोस्तों का, बहुत से एक्टिविस्टों का, बहुत से सोशल नागरिकों का फ़ोन आता है कि अजय भाई हमने आरटी एप्लीकेशन की, पर मेरा जवाब ये आ रहा है कि इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड पे नहीं है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड पे नहीं है, उसका मीनिंग क्या हुआ। मैंने मांगा एबीसी कॉरपोरेशन ने पर्टिकुलर बिल्डिंग बनाया, वो बिल्डिंग के लिए प्लान पास और नक्शे की कॉपी दीजिए, और जवाब आता है कि इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड पे नहीं है। ये अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन है। इसका जवाब ये है कि ये पर्टिकुलर बिल्डिंग में कोई पण प्लान अप्रूव हुआ नहीं है। लेकिन हमारी ये गैर समझ है कि हम लोग ये बोल देते हैं
कि इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड पे नहीं है यानी जवाब नहीं मिला है, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड पे नहीं है यानी जवाब मिल गया। आप पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में एक आरटीआई एप्लीकेशन करते हैं और आप पूछते हैं कि फलाना के ऊपर सन ऑफ फलाने के ऊपर पिछले 5 साल में कितने केस हुए, और वहाँ से ये जवाब आता है कि इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड पे नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर कोई केस नहीं है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हम क्या मांग रहे हैं और सामने से हमको जवाब क्या मिल रहा है। हमने एक आरटीआई एप्लीकेशन फ्रेम कर दी, अब ये एप्लीकेशन को मैं करूँ कैसे, मैं दूँ किसे, किसके पास इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले यदि आपको मालूम हो, यदि आपको जानकारी हो, तो आप पर्टिकुलर उसी ऑफिस में ये आरटीआई एप्लीकेशन भेजिए। अब आरटीआई एप्लीकेशन आप 2 तरीके से दे सकते हैं। पहली एप्लीकेशन आप पर्सनली जाके दे सकते हैं और एक जेरोक्स कॉपी के ऊपर आपको वो रिसीव करके देगा। दूसरा तरीका है आप स्पीड पोस्ट या आरपीआईडी रजिस्टर्ड पोस्ट रेट से आप डायरेक्ट वहाँ पे बाई पोस्ट भेज सकते हैं। ये दूसरा और महत्वपूर्ण तरीका है, जहाँ पे मैं यहाँ राजस्थान में बैठा बैठा, मैं गुजरात में बैठा बैठा, मैं गांधीनगर में बैठा बैठा यदि मैं सूरत की इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, या मैं सूरत में बैठा बैठा सौराष्ट्र के पर्टिकुलर गांव की इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, तो मुझे वहाँ जाके देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 30 रुपये या 25 रुपये लगेगा, मैं पोस्ट ऑफिस में जाऊँगा और उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दूँगा। तो इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए जो एप्लीकेशन करनी है, जो एप्लीकेशन आपने प्रिपेयर कर दी है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचिए मत। सिर्फ इतना दिमाग लगाइए कि आपने लैंड रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन मांगी है तो वो रेवेन्यू में मिलेगी, वो मामलतदार के पास मिलेगी, वो कलेक्टर के पास मिलेगी। यदि आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हद में रोड, रास्ते, गटर, पानी की व्यवस्था के बारे में जानकारी चाहते हो तो आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मिलेगी। यानी सूरत में होगा तो सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद होगा तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और दूसरे किसी पर्टिकुलर एरिया में जो वहाँ की लोकल गवर्नेंस है उसके अंडर में होगी। यदि मैं किसी बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ तो बैंक के पास में वो इन्फॉर्मेशन होगी, यानी वो एप्लीकेशन मुझे वो पर्टिकुलर बैंक में देनी पड़ेगी। यदि मैं किसी संस्था इंडियन पोस्ट के बारे में मांगना चाहता हूँ तो पोस्ट ऑफिस में मिलेगी। मैं रेलवे के मामले मांगना चाहता हूँ तो रेलवे में मिलेगी। बस आपके नज़दीक में जो भी ऑफिस है आप वहाँ पे दे सकते हैं। यदि रेलवे का ऑफिस सूरत में सूरत रेलवे स्टेशन पे है तो मैं आरटीआई एप्लीकेशन रूबरू जाके वहाँ दे सकता हूँ। लेकिन हम ज़्यादातर ये चाहते हैं कि पोस्ट करें, क्योंकि आज के तारीख में पोस्ट सस्ता, सुंदर और टिकाऊ और रिकॉर्ड पे आने वाली इन्फॉर्मेशन है, तो आप पोस्ट से वो इन्फॉर्मेशन के लिए भेज सकते हैं। अब बात आई एप्लीकेशन आपने गलती से दूसरी जगह भेज दी, एप्लीकेशन आपने गलत एड्रेस पे भेज दी, या एप्लीकेशन आपको समझ नहीं पड़ा कि मेरी ये लैंड तालुका पंचायत में आती है, पंचायत में आती है, मुझे मालूम नहीं है। मुझे ये मालूम नहीं है कि इसका मामलतदार कौन है, मुझे ये मालूम नहीं है कि ये टेंडर किसने निकाले थे, किस तरीके से निकाले, इसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है। तो उसके लिए सबसे ईजी तरीका सबसे वो है कि आप वो एरिया के कलेक्टर को आप इन्फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन भेज सकते हैं। आपको ऊपर उसका नाम लिखना है, जाहिर माहिती अधिकारी, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, और जो गुजरात में हो तो गुजरात में, और आपसे इन्फॉर्मेशन, आपको वो इन्फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन बाई पोस्ट भेज देनी है या इनवर्ट करा के आ जानी है। हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन उनके पास में नहीं हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह जाती हो, तो बहुत ये हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन को वो 5 दिन के अंदर अंदर दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर कर देगा। यानी आपको चिंता की, आपको फिक्र की जरूरत नहीं है। यदि आपकी एप्लीकेशन गलत जगह चली गई है, आपकी एप्लीकेशन आपने गलत जगह भेज दी है, तो डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कानून में 6(3) में प्रावधान दे रखा है कि आपकी एप्लीकेशन को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पहुंचाने की जवाबदारी जिस अधिकारी को वो एप्लीकेशन मिली है उसकी है। यानी आपको इस चीज़ में घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बीच में आपको बोलना था जो मैंने बोला था, यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको पढ़ा लिखना नहीं आता है, या आप अपंग यानी समझा सकने में अपंग हो, तो आप आपकी भाषा के अंदर, आपकी भाषा यानी आप लिख के या बता के, आप बोल के इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। कानून में धारा 5 दिन में प्रावधान दे रखा है कि जिस बंदा इन्फॉर्मेशन मांगने में सक्षम नहीं है, कुछ उसको इशू है, तो वो बोल के या उनको समझा के इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। ओरली पर इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है और पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की जवाबदारी है कि वो पूरी की पूरी उसकी सहायता करेगा। बात आती है एप्लीकेशन लगा तो दी, लेकिन एप्लीकेशन की फीस कैसे भरनी है और कहाँ भरनी है। तो सबसे इजी तरीका है एप्लीकेशन की फीस भरने का। यदि आप गुजरात में हो, आपको गुजरात के किसी विभाग में आरटीआई एप्लीकेशन लगानी है तो बहुत ईजी है। कोर्ट फीस की एक टिकट मिलती है 20 रुपये की। यदि आप सूरत हो तो बहुमाड़ी में मिलेगी, अहमदाबाद है तो भी बहुमाड़ी, कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपके आजू बाजू जो भी कोर्ट
मामलतदार की जो रेवेन्यूज की ऑफिस होती है उसके बाहर जो स्टाम्प वेंडर बैठे रहते हैं उनके पास में ये टिकट मिल जाएगी। यानी आपको 20 रुपये की टिकट आपने जो एप्लीकेशन हाथ से लिखी, टाइप की, जिस तरीके से भी की उसके ऊपर चिपका देनी है और उसकी जेरोक्स कॉपी ले लेनी है, ओरिजिनल सामने वाले को सबमिट करनी है, जेरोक्स पे वो रिसीव करके दे देगा। इसके अलावा कुछ संस्थाओं में जहाँ पे रोकड़ा भरने की फैसिलिटी है वहाँ पे आप कैश भर सकते हैं। लेकिन यदि संस्था सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है, जैसे इंडियन पोस्ट हो गई, इंडियन रेलवे हो गई, नेशनलाइज बैंक हो गई, IOCL हो गई, ये सब संस्थाएं केंद्र शासित है, केंद्र के पास में उनका शासन है। वो एप्लीकेशन के लिए आपको सिर्फ 10 रुपया फीस है और वो 10 रुपया फीस आप बाई पोस्टल ऑर्डर, पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो आपको ब्लैंक चेक जैसा मिलेगा, उसको हम पोस्टल ऑर्डर बोलते हैं। वो पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो मेरी गिनती के हिसाब से 11 रुपये के आसपास, 1 रुपये या 1.5 रुपये कमीशन उसका आपको मिलेगा। वो ब्लैंक चेक आपको आपका नाम और आपकी डिटेल लिख के सामने वाले को भेज देना है, उसकी विगत लिख के कि भाई ये 10 रुपये मेरा RTI का फीस के रूप में आप स्वीकार कीजिए, और बाई पोस्ट आप भेजोगे तो वो स्वीकार कर लिया जाएगा। यानी फीस भरने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 10 रुपया, गुजरात गवर्नमेंट 20 रुपया, स्टाम्प पेपर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर आप RTI करोगे चलेगा, रोकड़ा भरोगे चलेगा, SMC जैसी संस्थाएं रोकड़ा स्वीकार करती है चलेगा। तो इस तरीके से आप वो फीस भर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखिए अलग अलग स्टेट के अंदर RTI की फीस अलग अलग है। आप राजस्थान में जाएंगे 10 रुपया फीस है, आप महाराष्ट्र में जाएंगे 10 रुपया फीस है, आप पंजाब चंडीगढ़ इस तरफ जाएंगे 50 रुपया फीस है, आप गुजरात की कोर्ट से इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो उसकी फीस 50 रुपया है। यानी गुजरात में जो कोर्ट है, कोर्टों में RTI की फीस 50 रुपये है। ये सीधा साधा तरीका हो गया कि आप इन्फॉर्मेशन कैसे मांग सकते हैं, कहाँ मांग सकते हैं, किस तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं और किस तरीके से फीस भर सकते हैं। अब बात आती है इन्फॉर्मेशन आपको कब मिलेगी। इन्फॉर्मेशन नियम के हिसाब से 30 दिन के भीतर भीतर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और 30 दिन जो है वो 30 कैलेंडर डे है। यानी आपने जिस दिन एप्लीकेशन रिसीव कराई उस दिन से 1 से गिनती चालू हो जाती है। फिर चाहे छुट्टी हो, फिर चाहे रजाएं आती हो, फिर चाहे दिवाली की रजा हो, फिर चाहे इलेक्शन हो, कुछ भी हो, विद इन 30 डे आपको इन्फॉर्मेशन मिलने के पात्र है। 30 दिन यानी 30 कैलेंडर डे के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जो मैंने फीस बताई वो तो एप्लीकेशन की फीस है। इसके अलावा एक और फीस है, वो है जेरोक्स चार्ज। बहुत लोगों की नासमझी है कि बस वो 20 रुपये भर दिए यानी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी वो 60 पन्ने की है, 70 पन्ने की है, 80 पन्ने की है, 20 पन्ने की है, 10 पन्ने की है, तो जितने भी पन्नों की एप्लीकेशन होगी, यदि A3 A4 साइज होगी उसका 2 रुपया पर पेज का जेरोक्स कॉपी आपको लगेगा। वो आपके पास लेटर आएगा और वो लेटर आने के बाद में आपको उसको जवाब देना है कि भैया आपने 40 रुपये मांगे थे, मैं 40 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो मैंने पहले आपको बता दिया वो पोस्टल ऑर्डर भेज रहा हूँ। और आप रोकड़ा जाके भी भर सकते हैं। आप जैसे ही वो पोस्टल ऑर्डर भेजोगे आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। 30 दिन के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है सभी इन्फॉर्मेशन 30 दिन के अंदर मिलती हो। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है जो सेक्शन 7(1) लाइफ और लिबर्टी, आपके जीवन का सवाल हो, आपकी स्वतंत्रता का सवाल हो, तो आप सामने वाले से 48 घंटे के अंदर डिमांड कर सकते हैं कि मैं RTI एप्लीकेशन कर रहा हूँ और मेरे को ये इन्फॉर्मेशन 48 घंटे के अंदर चाहिए। लेकिन आपको उसका सॉलिड और आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये इन्फॉर्मेशन मेरी लाइफ और मेरी लिबर्टी को लेकर सवाल है, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को 48 घंटे के अंदर मिलनी चाहिए। तो ये रही अपनी इन्फॉर्मेशन मांगने का तरीका, इन्फॉर्मेशन का समय, इन्फॉर्मेशन कैसे मांग सकते हैं, कहाँ से मांग सकते हैं और उसकी एप्लीकेशन और उसकी क्या प्रोसेस है। अगले चरण में हम आपको बताएंगे यदि 30 दिन के अंदर या 48 घंटे के अंदर हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो हम आगे उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। एक सेंटेंस में बोलूँ तो यदि इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती तो सामने वाले अधिकारी पे 250 रुपया पर डे की पेनल्टी हो सकती है, वो भी उसके पगार में से। तो दोस्तों छोड़ के मत जाइएगा, सोचिए कि किसी भी अधिकारी के पगार में से 250 रुपये पर डे की पेनल्टी हो सकती है, तो वो अधिकारी डरेगा या नहीं डरेगा? वो पक्का डरेगा। हम सबके बीच में बने रहिए, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। थैंक यू वेरी मच।
નમસ્કાર મિત્રો, હવે વાત આવી, આપણે એના પહેલાં વાત કરી હતી કે રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટની એપ્લિકેશન કેમ કરવાની, રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટની એપ્લિકેશન કઈ રીતે કરવાની, રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટની એપ્લિકેશનની ફીસ કેવી રીતે ભરવાની, રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટની એપ્લિકેશન મોકલવાની કઈ હિસાબે, અને આપણને ઇન્ફોર્મેશન કેટલા દિવસમાં મળે. અને હું તમને જેમ બતાવ્યું કે રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટમાં એપ્લિકેશન જો તમે કરો તો જે દિવસે એપ્લિકેશન સામેવાળાને રિસીવ થાય એ દિવસ ગણીએ તો એ દિવસથી લઈને 30 દિવસની અંદર તમને ઇન્ફોર્મેશન મળે. જો 30 દિવસની અંદર ઇન્ફોર્મેશન ના મળે અથવા તો તમે સંતુષ્ટ ના હોય અથવા તો આધું અધૂરી મળી હોય અથવા તો તમારાથી વધારે ફીસ અથવા તો વધારે ચાર્જ માંગી લેવામાં આવ્યો હોય તો તમે અપીલ પ્રોસિડિંગ છે અને એ અપીલ પ્રોસિડિંગમાં તમે જઈ શકો છો. તમે જે અધિકારી છે, જે અધિકારીએ તમને જવાબ આપ્યો છે અથવા તો જે અધિકારીએ તમને જવાબ નહીં આપ્યો અને જે જવાબ આપવા બંધાયેલો છે એ જવાબ આપવા કસ્ટોડિયન ઓફ ધ ઇન્ફોર્મેશન જો એ છે તો તમે એને ખિલાફ ફર્સ્ટ અપીલ ફાઇલ કરી શકો છો. કાયદાની અંદર પ્રોવિઝન બહુ ક્લિયર લખવામાં આવી છે કે જો તમે અસંતુષ્ટ છો, જો તમને આદુ અધૂરી ઇન્ફોર્મેશન મળી હોય અથવા તો તમને વધારે ચાર્જ માંગવામાં આવ્યો હોય અથવા તો તમને ઇન્ફોર્મેશન મળી જ ન હોય, બધા સંજોગોની અંદર તમે એના ઉપરી અધિકારી અને આ કાયદાની પરિભાષામાં આવતા પ્રથમ અપીલ અધિકારીને અપીલ કરી શકો છો. અને અપીલ કરવા માટે સૌથી વધારે પ્રશ્નો અમારી સામે આવે છે કે અપીલની ફીસ શું. તો ભાઈ 20 રૂપિયા આરટીઆઈની એપ્લિકેશન જો તમે ગુજરાતમાં આપી દીધી તો એના પછી એમાં અપીલની કોઈ ફીસ નથી. તો અપીલની કોઈ પણ જાતની ફીસ હોતી નથી. એપ્લિકેશનની અપીલ કરવાની કે હિસાબે આ આપણે તમે કે હિસાબે કરી શકો છો. અને લખવાનું શું છે, બહુ સીધું છે, બહુ સરળ છે. હું તમને કહેવા જાઉં કે આ એપ્લિકેશનની અંદર જો તમે આરટીઆઈની એપ્લિકેશન કરી અને 30 દિવસની અંદર તમને ઇન્ફોર્મેશન ન મળી, આધું અધૂરી મળી, અસંતુષ્ટ છો કે વધારે ફીસ માંગવામાં આવી તો તમારે એની પ્રથમ અપીલ અધિકારી એનો ઉપરી અધિકારી હોય. જો પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, પીઆઈઓ હોય, જાહેર માહિતી અધિકારી હોય તો એ એરિયાનો એસીપી, એના લાગતા એસીપી એ તમારા પ્રથમ અપીલ અધિકારી હોય. જો તલાટી હોય તો મામલતદાર અથવા તો ડેપ્યુટી કલેક્ટર એ અપીલ અધિકારી હોય. તો જો ડેપ્યુટી મામલતદારને તમે આરટીઆઈ કરી હોય તો ટીડીઓ અથવા તો કલેક્ટર એનો પ્રથમ અપીલ અધિકારી હોય. જો હું નાના એક એરિયામાં જો ડીજીવીસીએલની હું વાત કરું, સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વાત કરું, જો ડેપ્યુટી એન્જિનિયર પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર હોય તો એના ઉપરી અધિકારી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર અથવા તો સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ એન્જિનિયર એમના અપીલ અધિકારી હોય. આ વાત રહી કે મને તો ખબર નથી પડતી, કાયદામાં બહુ ક્લિયર લખ્યું છે, માત્ર એક સંજોગોની અંદર તમને ખબર નથી પડતી કે એનો અપીલ અધિકારી કોણ છે. બાકી જો તમને જવાબ આવ્યો હોય, અધૂરું આવ્યો હોય, મોડું આવ્યો હોય, અસંતુષ્ટ હો અથવા તો વધારે ફીસ માંગ્યા હોય તો બધા જ કન્ડિશનની અંદર જ્યારે જાહેર માહિતી અધિકારી તમને પત્ર લખે છે, પત્ર વ્યવહાર કરે છે તો તમને કહે છે કે ભાઈ મારો પ્રથમ અપીલ અધિકારી જો તમે મારી વાતથી અસંતુષ્ટ છો તો તમે ફલાણા એમાં નામ, એડ્રેસ અને કોન્ટેક્ટ નંબર બધું આપેલું હોય કે તમે મારા અગેન્સ્ટમાં અપીલ ફાઇલ કરી શકો છો, મારા ડિસિઝનના અગેન્સ્ટમાં અપીલ ફાઇલ કરી શકો. અને એની પ્રોસિડિંગ શું, એની પ્રોસિડિંગ બહુ ઇઝી છે. બહુ 30 દિવસની અંદર અથવા તો અસંતુષ્ટ હોય તો તમારે એક સાદી ભાષાની અંદર એક ફિક્સ ગણતરી છે કે તમારે શું ઇન્ફોર્મેશન આપવી જોઈએ. તો તમારે સૌથી પહેલાં તો તમારા વિશે, તમે આરટીઆઈની એપ્લિકેશન ક્યારે કરેલી હતી, કેટલી તારીખે સામેવાળાએ રિસીવ કરી છે, કેટલી તારીખે સામેવાળાને મળી ગઈ છે, 30 દિવસ કેટલા દિવસમાં પૂરા થાય છે અને તમને માહિતી 30 દિવસમાં મળી નથી અથવા તો ફલાણા તારીખે મને આ જવાબથી મને આ માહિતી માટે નકાર્યું છે અથવા તો ઓછી આપી છે અથવા તો અસંતુષ્ટ છે તો તમારે લખવું પડે કે આટલી તારીખે પીઆઈઓ પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસરનો જવાબ આવ્યો છે, આ જવાબથી હું અસંતુષ્ટ છું, મને આધી અધૂરી મળી છે, મને ઇન્ફોર્મેશનની ફીસ વધારે માંગવામાં આવી, ચાર્જ વધારે માંગવામાં આવ્યું છે અથવા તો બીજું કોઈ રીઝન હોય તો એ રીઝન અને એ લઈને તમે માત્ર એક સાદી એપ્લિકેશનમાં કરીને ટાઈમ પીરિયડ એનો છે કે તમને 30 દિવસની અંદર જો 1 તારીખે તમે અરજી કરી હોય તો આગલા મહિનાની 30 તારીખ એટલે એ જ મહિનાની 30 તારીખ 30 દિવસ એટલે 1 તારીખે અથવા તો 30 દિવસનો મહિનો હોય તો તમે 1 તારીખે કે 2 તારીખે પ્રથમ અપીલ કરી શકો છો. પણ આ પ્રથમ અપીલ કેટલા દિવસ સુધી કરી શકો તો આગલા 30 દિવસ સુધી. એટલે 30 દિવસ પ્લસ આગલા 30 દિવસ સુધી તમને છૂટ છે કે તમે પ્રથમ અપીલ કરી શકો છો. આવા કિસ્સા જેમાં ઇન્ફોર્મેશનનો જવાબ આવી ગયો છે, ઓછું અધૂરું, આદું અધૂરું, અસંતુષ્ટ છો તમે
અથવા તો તમારાથી ચાર્જ વધારે માંગ્યું છે, તો જે દિવસે તમારો જવાબ આવ્યો છે એ જવાબથી લઈને 30 દિવસ સુધી તમે પ્રથમ અપીલ કરી શકો છો. પ્રથમ અપીલના 30 દિવસ તો ટાઈમ છે જ, પણ તમે જ્યારે મોડું થતું હોય તો તમે મોડું એપ્લિકેશનમાં લખી શકો છો કે મને આ કારણેથી મોડું થઈ ગયું છે. અને ઘણા ખરા નહીં, બધા જ કિસ્સામાં લગભગ બધા જ કિસ્સામાં પ્રથમ અપીલ અધિકારી તમને સાંભળે છે કે ભાઈ સમય પૂરું થઈ ગયું છે, પણ તમને સાંભળવાનો મોકો આપે છે અને તમે પ્રથમ અપીલ કરી શકો છો. અને બહુ બધા કિસ્સાની અંદર જ્યાં સુધી મને ખબર છે, જ્યાંથી હું જાણું છું કે પ્રથમ અપીલ અધિકારી તમને ઇન્વાઇટ કરે છે કે ભાઈ તમે આવો, અને સામેવાળા અધિકારીને બોલાવે છે અને બંને પાર્ટીને રૂબરૂ સાંભળે છે અને જજમેન્ટ આપે છે, અને તમારા આધા કરતાં વધારાના જે તમારા પ્રશ્નો છે એનું નિરાકરણ પ્રથમ અપીલમાં થઈ જાય છે. તો હું તો બધા લોકોને સલાહ આપીશ કે આપણે પ્રથમ અપીલમાં જવું જોઈએ અને પ્રથમ અપીલ કરવી જોઈએ અને આપણી વાત પ્રથમ અપીલ અધિકારીની સામે મૂકવી જોઈએ. પ્રથમ અપીલ અધિકારી એટલે કોણ? પ્રથમ અપીલ અધિકારી સિનિયર ઓફિસર તો છે જ, પણ કાયદાની પરિભાષામાં, આરટીઆઈની કાયદાની પરિભાષામાં એને ક્વોસી જ્યુડિશિયલ ઓથોરિટી કહેવાય છે. એ અર્ધન્યાયિક વ્યવસ્થા છે, એને સત્તા આપેલી છે કે એ નિર્ણય આપી શકે છે, એ જજમેન્ટ આપી શકે છે. અને જજમેન્ટ જે હોય એ સ્પીકિંગ ઓર્ડર. સ્પીકિંગ ઓર્ડરનું મિનિંગ તમને કહું કે તમે શું કીધું, સામેવાળાએ શું કીધું, એ બધું એની અંદર મેન્શન કરીને તમને ઓર્ડર આપે છે. તો તમે આ પ્રથમ અપીલ કરી શકો છો. આ કાયદાની અંદર પ્રથમ અપીલ અધિકારી પાસે પણ ટાઈમ લિમિટેશન છે. જો તમે પ્રથમ અપીલ કરી છે તો એ તારીખથી લઈને 30 દિવસની અંદર પ્રથમ અપીલ અધિકારીને પોતાનો નિર્ણય આપી દેવો પડે. જો વધારાનો સંજોગો હોય તો અમે 15 દિવસ વધારાના ગ્રેસ પીરિયડ આપવામાં આવ્યા છે, પણ એનું કારણ રેકોર્ડ પર હોવું જોઈએ કે સાહેબ ક્યાં બિઝી હતા, શું ઇસ્યુ હતું. એટલે મેક્સિમમ 45 દિવસની અંદર પ્રથમ અપીલ અધિકારીને તમને સાંભળીને અથવા તો તમારું મેરિટ જોઈને નિર્ણય આપી દેવાનો હોય છે. એ છે 45 દિવસનો ટાઈમ. અને જો તમે બંનેથી અસંતુષ્ટ હોય અથવા તો બીજાથી સંતુષ્ટ છો પણ બીજાના હુકુમનું પીઆઈઓએ જાહેર માહિતી અધિકારીએ પાલન ના કર્યું, તો તમે આવા સંજોગોની અંદર સેકન્ડ અપીલ, જે આયોગ કહેવાય છે, જ્યાં ગુજરાતમાં ગુજરાત ઇન્ફોર્મેશન કમિશન છે, જે તમે સેન્ટરમાં જાઓ તો સેન્ટ્રલ CIC સેન્ટ્રલ ઇન્ફોર્મેશન કમિશન છે. તમે રાજસ્થાનની કોઈ પબ્લિક ઓથોરિટીને આરટીઆઈ કરી હોય તો રાજસ્થાન સ્ટેટ ઇન્ફોર્મેશન કમિશન છે. એટલે જે સ્ટેટનું અથવા તો જે રાજ્ય આપણું સેન્ટરનું હોય તો જે તે લાગુ પડતા સ્ટેટ ઇન્ફોર્મેશન કમિશન અથવા તો સેન્ટ્રલ ઇન્ફોર્મેશન કમિશનને તમે પ્રથમ અપીલ કરી શકો, સેકન્ડ અપીલ કરી શકો છો કે ભાઈ હું આ નિર્ણયથી અસંતુષ્ટ છું, અથવા તો પ્રથમ અપીલ અધિકારીનો નિર્ણય માનવામાં નહીં આવ્યો, અથવા તો પ્રથમ અપીલ અધિકારીના નિર્ણયથી પણ હું અસંતુષ્ટ છું. એટલે હું તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે મને સાંભળો અને સામેવાળા એટલે પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર પર કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરીને એને પેનલ્ટીની જોગવાઈ પ્રમાણે એને પેનલ્ટી કરી આપે. આ કિસ્સાઓની અંદર જે GIC ગુજરાત ઇન્ફોર્મેશન કમિશન અથવા તો ઇન્ફોર્મેશન કમિશન અથવા તો COC જે લાગુ પડે છે એમની પાસે પૂર્ણ સત્તા છે, અને એ 250 રૂપિયા પર ડેના હિસાબે સામેવાળા અધિકારીને પેનલ્ટી કરી શકે છે. અને ઘણા કિસ્સામાં જેન્યુઅન કિસ્સાની અંદર થાય પણ છે. એટલે જો 30 દિવસની અંદર ઇન્ફોર્મેશન તમને ના મળી હોય, એ મોડું કર્યું હોય તો 250 રૂપિયા પર ડેની પેનલ્ટી છે, પણ મેક્સિમમ પેનલ્ટી એમાં 25,000 રૂપિયા છે. અને આના નિર્ણયને ચેલેન્જ તમે બીજી જગ્યા ના કરી શકો, સીધું હાઈકોર્ટની અંદર ચેલેન્જ થાય છે. તો બહુ સીધી અને બહુ સરળ નાગરિકો માટેનો બનેલો આ કાયદો છે. બહુ ઇઝી છે, બહુ ઓછા 30-31 સેક્શનનો આ કાયદો છે. જો કહેવા જાઉં તો આપણી દેશી ભાષામાં કહું તો 3 પાનાની અંદર આ કાયદો સમાઈ જાય છે. એટલે બહુ સરળ કાયદો છે, ઉપયોગમાં લેવા લાયક કાયદો છે. અને જેટલી હું જાણકારી તમને આપી એ જાણકારીનો ઉપયોગ, એ જાણકારી ત્યારે સફળ થશે જ્યારે આપણને એવું લાગશે કે આપણે એનો ઉપયોગ કર્યો. અને આ બધું જ્યારે જ ઇઝી પડશે, તમે ઉપયોગ કરશો તો તમારા મનમાં બીજા પ્રશ્નો આવશે અને અમે તમારી સાથે હોશું. અમે ટાઈમ ટુ ટાઈમ તમને અપડેટ કરતા આવતા રહીશું. અમારી હેલ્પલાઇન પણ ચાલે છે, તમે કોમેન્ટ બુકમાં કોમેન્ટ કરી શકો છો. અમે તમારા જવાબ આપવાની પૂરી કોશિશ કરશું. તો આ એક નાનકડું સેશન હતું રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ, માહિતી અધિકાર કાયદા વિશેનું. એવા સેશનો, એવા જ ગણતરીઓ, એવા જ કાયદાઓ, એવા જ તમને લાગતા વળગતા અધિકારો વિશે અમે સમય પર તમારી સામે આવતા રહીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. અમને સાંભળો. અને પિયુષ કોલડિયા સાહેબ અમારી સાથે પાછા આવી ગયા છે અને એ બતાવશે કે આગળ અમે શું કરવા જઈ રહ્યા છે અને આગળ અમે શું કરશું. થેન્ક યુ અજયભાઈ.
તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. દર્શક મિત્રો, આજના આ પ્રસંગે મને એક ગાંધીજીનું સુંદર મજાનું જે રમકડું હતું ત્રણ વાંદરાનું, એના વિશે થોડી વાત કરવી છે. કે 3 વાંદરામાં એક વાંદરાના આંખ બંધ હતી, એકના કાન બંધ હતા, એકનું મોં બંધ હતું. એનું સાદું એક્સપ્લેનેશન એવું હતું કે ખોટું બોલવું નહીં, ખોટું જોવું નહીં, ખોટું સાંભળવું નહીં. પણ આજના સંદર્ભમાં એ રમકડું એવું કહેવા માગે છે કે ભ્રષ્ટાચાર વિશે વાત કરવી નહીં, ફરિયાદ કરવી નહીં, કોઈનો ભ્રષ્ટાચાર સાંભળવો નહીં, અને કોઈ ફરિયાદ કરવા આવે તો એને જોવું નહીં. જો ગાંધીજી આજે હોત તો એ 3 વાંદરામાં એક ચોથું વાંદરું ઉમેરત અને એ વાંદરું લખતું હોત. હા મિત્રો, એ આરટીઆઈ લખતું હોત. તો થેન્ક યુ આપ સૌ આ પ્રોગ્રામમાં જોડાયા બદલ. અમે હજુ પણ પ્લાન કરી રહ્યા છીએ કે તમને કાયદા વિશે વધારે ને વધારે ટોપિક પર જેટલી બની શકે એટલી વધારે ને વધારે માહિતી આપી શકીએ. તો એ બાબતે અમે આ વોલ પર તમને સમયે માહિતી આપતા રહીશું. અને આપ પણ અમારો પ્રોગ્રામ જોડાતા રહો અને તમારા મિત્રો સાથે આ વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો આજનો આ પ્રોગ્રામ હું અહીંયા પૂરો કરું છું. મારી સાથે કેમેરામેન મિસ્ટર દિલીપ સાચાણી, મિસ્ટર અજય જાંગીર અને હું ડૉક્ટર પિયુષ કોલડિયા આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. હેવ અ ગુડ ડે.